is analyzed at this section. वेट बेटा वेट, चैटिंग के लिए इतना टाइम मत दीजिए आप। निरुपम, आपका डाउट क्या है वो मैं क्लियर किए दे रहा हूं। अंडर लैग्रेंजियन अप्रोच, दैट इज योर लाइन इज मिस्ड, ओके। In this approach, single fluid particle is taken into consideration and behavior of this particle is analyzed at different instance of time. अलग अलग क्षण में हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। Now under Eulerian approach, certain section is taken into the consideration. Certain section is taken into the consideration. Okay, and fluid flow behavior is analyzed at this section. ठीक है, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर करता हूं लैग्रेंजियन अप्रोच, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी अभी पहले इंस्टेंट पर यहां पर है, दूसरे पे यहां आया, तीसरे पर वो यहां गया, चौथे पर वो यहां गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो दूसरा इंस्टेंट है, दूसरी पोजीशन है, वो फर्स्ट से ही डिफाइन होगी, जो थर्ड है वो सेकंड से ही, जो फोर्थ है वो थर्ड से ही डिफाइन होगी। मतलब आइडेंटिटी बन जा रहा है, प्रीवियस के बिना आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ व्हाट आई एम कंसीडरिंग, सर्टेन सेक्शन दैट आई एम टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन, दैट इज योर व्हाट, ऑयलरियन अप्रोच। यहां पर किस वेलोसिटी से गया, किस एक्सीलरेशन से गया, किस टाइम पर फ्लूइड फ्लो हुआ, दैट सेक्शन आई एम ऑब्जर्विंग। ओके, नाउ write down next heading, that is what types of flow. इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी, टाइम टेक इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी अभी पहले इंस्टेंट पर यहां पर है, दूसरे पे यहां आया, तीसरे पर वो यहां गया। नाउ अंडर ऑयलेरियन अप्रोच, Eulerian approach, certain section is taken into the consideration. Certain section is taken into the consideration. Okay, and fluid flow behavior is analyzed at this section. ठीक है, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर करता हूं लैग्रेंजियन अप्रोच, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी अभी पहले इंस्टेंट पर यहां पर है, दूसरे पे यहां आया, तीसरे पर वो यहां गया, चौथे पर वो यहां गया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो दूसरा इंस्टेंट है, दूसरी पोजीशन है, वो फर्स्ट से ही डिफाइन होगी, जो थर्ड है वो सेकंड से ही, जो फोर्थ है वो थर्ड से ही डिफाइन होगी। मतलब आइडेंटिटी बन जा रहा है, प्रीवियस के बिना आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ व्हाट आई एम कंसीडरिंग, सर्टेन सेक्शन दैट आई एम टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन, दैट इज योर व्हाट, ऑयलरियन अप्रोच। यहां पर किस वेलोसिटी से गया, किस एक्सीलरेशन से गया, किस टाइम पर फ्लूइड फ्लो हुआ, दैट सेक्शन आई एम ऑब्जर्विंग। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ फ्लो। इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरी है। ओके, टाइप्स ऑफ एंड एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो, okay, or better to write types of fluid flow. Types of fluid flow. Types of fluid flow. Under this write down first, one by one discuss करेंगे। Okay, under this write down first, study and unstudy flow. Study and unstudy flow. Study and unstudy flow. क्या है बताएंगे बेटा आप लोग? What do you mean by study and unstudy flow?
What do you mean by steady and unsteady flow? Any energy in and energy out equal. The flow velocity is constant with respect to time. सूरज आपने बोला flow velocity is constant with respect to time. Any other answer? अर्शद बिल्कुल गलत. Energy in is equal to energy out. Steady flow energy equation की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. ठीक है. Property of fluid does not change with respect to time. Steady flow. Time के साथ fluid properties change ना हो. Not change with respect to time. The velocity is vary with respect to time is what unsteady. Okay. Physical properties of water does not change with respect to time. Shweta, independent to the time at every point. Teja, flow chart does not change with respect to time. Shiva, velocity constant with respect to time. Flow does not change with respect to time. Steady flow do not change with respect to time. Fix space. Very good, Mohit. Now to time. सुनिएगा जरा. When it's fluid property and flow quantities. Fluid properties means what? Like density, weight density, whatever. And flow quantities means what? That is what? Velocity or acceleration. समझ में आया मैं क्या बोला? A flow is said to be steady flow. A flow is said to be steady flow when fluid properties and flow quantities are not changing with respect to time. Are not changing with respect to time at the particular section. यही सब आप लोग भूल रहे थे. Fluid properties and flow quantities are not varying with respect to time. यहां तक सबने बोला. But at particular section, एक particular section that we have to taken into the consideration, वहां से एक fluid particle flow हुआ, वो 5 meter per second velocity से flow हुआ. Good. Second instant of time, same particular section पर लिया, again वो 5 meter per second velocity से flow हुआ. That is your what? Third instant पर भी 5 meter per second velocity से ही flow हुआ. That will be your what? A steady flow. That will be your what? A steady flow. Now let me take one pipeline and I am considering one section here. I am considering one section here. Now at the first instant of time, यहाँ से जो fluid flow की velocity थी at the first instant of time, that is your what? 5 meter per second. After 5 seconds मैंने चेक किया, अगेन मैंने पाया that velocity after 5 seconds at the same section, different time, same section, different time. That is your what? We are categorizing steady flow. Same section, different time. अभी 5 सेकंड के बाद में देखा तो ये हुआ. 10 सेकंड के बाद अगेन 5 मीटर पर सेकंड. अभी ये चेंज नहीं होता. एट सेम सेक्शन एट डिफरेंट टाइम fluid properties or flow quantities are not changing. That fluid flow is categorized as the steady flow. सेक्शन तो कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा. सेक्शन तो कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा. समझ में आया? एट अ पर्टिकुलर सेक्शन ही मैं बात कर रहा हूं. अदरवाइज इफ इट इज चेंजिंग टू द मींस दैट इज व्हाट? अगेन सेम पाइपलाइन. फिर से मैंने उसे कंसीडर किया एट द फर्स्ट इंस्टेंस दैट इज योर व्हाट बेटा? 5 meter per second at particular section at different instant of time. Second, after 5 seconds, that is your what? 6 meter per second. Now third instant, that is your what? Again, that is your what? 4 meter per second. So velocity, flow quantity or fluid properties, that may be your density, weight density, whatever it is changing with respect to time at the particular section. That is your what? Unsteady flow. And that is your what? A steady flow.
आपके दिमाग में डाउट आएगा सर कि ये पाइपलाइन डाइवर्ज कर दें हम लोग, कन्वर्ज कर दें, तब क्या होगा? यदि मैं कन्वर्ज कर दूं इस पाइपलाइन को, मींस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होते जा रहा है बेटा? कम होते जा रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होते जा रहा है इन द सेंस इस तरीके से कोई पाइपलाइन है। अगेन मैं क्या बोलता हूं, दैट इज योर व्हाट, सर्टेन पर्टिकुलर सेक्शन दैट आई हैव टेकन इनटू द कंसीडरेशन। अभी यहां पर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी फर्स्ट इंस्टेंट पर था, सेकंड पर भी आफ्टर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 व्हाटएवर, मैं चेक करता हूं 5 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी है एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, दैट विल बी योर व्हाट, स्टडी फ्लो। दैट विल बी योर व्हाट, स्टडी फ्लो। गेटिंग मी और नॉट? सर्टेन सेक्शन दैट यू हैव टू टेकन इनटू द कंसीडरेशन, वहीं पर ही बात कर रहे हैं, दैट विल बी योर व्हाट, स्टडी फ्लो। समझ में आया? अभी मैं यहां पर बोलता हूं 5 से 6 हो गया, ये कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, A मल्टीप्लाइड बाई V, दैट इज योर व्हाट, डिस्चार्ज। आई होप सो इतना आप लोग जान रहे हैं, ये भी डिस्कस होगी अभी चीजें। एरिया इज व्हाट, मीटर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड, दैट विल बी योर व्हाट, मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज योर नथिंग बट डिस्चार्ज। दैट इज योर नथिंग बट डिस्चार्ज। अभी मैं बोलता हूं कि फ्लो रेट इंक्रीज हो गया, दैट डिस्चार्ज इंक्रीज हो गया, दैट डिस्चार्ज इज नथिंग बट Q is also called as flow rate, meter cube per second और discharge। अब मैं यहां पर बोलता हूं कि 5 से 6 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया, एरिया सेम है, एरिया सेम है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो Q क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगेन मैं बोलता हूं 6 से 4 हो गया, तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? सो कांस्टेंट डायमीटर के पाइप के साथ अनस्टेडी फ्लो में डिस्चार्ज वेरिएशन होते हुए आपको मिल सकता है। समझ में आया? एट द पर्टिकुलर सेक्शन एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, यदि आपका प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज और फ्लो क्वांटिटीज वेरी हो रहा है, दैट इज योर व्हाट कैटेगराइज्ड एज द स्टडी फ्लो। दैट इज व्हाट कैटेगराइज्ड एज द स्टडी फ्लो। और यहां पर स्ट्रीमलाइन का भी कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, बट मैं बोलता हूं जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो अलोंग दी स्ट्रीमलाइंस ही होता है। दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीमलाइंस। दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीमलाइंस। दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीमलाइंस। समझ में? एंड नाउ on V1 is equal to A to V2, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास एंटर किया उतना मास बाहर आएगा, दैट्स इट। अभी एरिया यहां से यहां आते हुए क्या हो गया बेटा, कम हो गया, तो बट ऑब्वियस वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, कम है, तो यहां आते आते वेलोसिटी, एरिया कम होने के कारण वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट अभी भी मैं बोलता हूं वेलोसिटी बढ़ रहा है। मैं बोलता हूं यहां पर वेलोसिटी था फर्स्ट सेक्शन पर जो मैंने कंसीडरेशन में लिया 4 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेक्शन पर 5 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेक्शन पर मैं बोलता हूं 6 मीटर पर सेकेंड, बट आफ्टर फर्स्ट इंस्टेंट आई एम मूविंग टूवर्ड द सेकेंड इंस्टेंट, 5 सेकेंड बाद बात करता हूं, तो 5 सेकंड बाद भी देखता हूं यहां 4 मीटर पर सेकंड ही था, 5 सेकंड बाद देखता हूं यहां पहले 5 मीटर पर सेकंड था, अगेन 5 मीटर पर सेकंड, यहां 6 मीटर पर सेकंड था, तो अगेन 6 मीटर पर सेकंड, दैट इज योर व्हाट, अगेन स्टडी फ्लो। वेलोसिटी चेंज हो रहा है बेटा, बट तब भी ये क्या होगा, स्टडी फ्लो होगा। ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रहा है। एक इंस्टेंट पर देखते हैं तो एक सेक्शन पर 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेक्शन पर 5 मीटर पर सेकेंड, थर्ड इंस्टेंट पर 6 मीटर पर सेकेंड। एक इंस्टेंट पर चेक किया डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट सेक्शन पर, वेलोसिटी अलग अलग है एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। यहां पर हम डिफरेंट इंस्टेंट्स पर चेक कर रहे थे कि भाई 5-10 मिनट बाद कुछ चेंज तो नहीं हुआ, यहां पर उसी पॉइंट पर, उसी टाइम पर हमने चेक किया डिफरेंट सेक्शन पर, कुछ बदल तो नहीं रहा। That is your what? That is your what? Non-uniform flow. With respect to space, at the given instant of time मुझे चेंज देखने को मिलता है. That is your what? Non-uniform flow. यदि ये चेंज मुझे देखने को नहीं मिलता है with respect to state at the
same instant or given instant of time, that will be your what? Uniform flow. That will be your what? Uniform flow. क्या ये चीजें समझ में आ रही है बेटा? जो गहराई मैंने अभी बढ़ाई है यहां पर। पार्टिकल की स्पेलिंग करेक्ट करो पहले तो अभिषेक, CLE होगा, नॉट CAL। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं बेटा? अभी मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी थोड़ा सा बताया है। टाइम बट सर्टेन सेक्शन दैट यू हैव टू टेकन टू कंसिडरेशन। उस पर्टिकुलर सेक्शन पर यदि प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लो क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी योर व्हाट? स्टडी फ्लो। चलिए हेडिंग दीजिए स्टडी फ्लो एंड स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, अंडर ब्रैकेट लिखिएगा। हाँ प्रिंस, अभी मैंने बस थोड़ा दूर दिखा करके छोड़ा है, अभी हम आएंगे डिटेल में। लिख ले, नहीं तो सब कुछ मिक्स होने लगेगा। ठीक है, टॉपिक जैसे ही अच्छे यानी गहराई बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, वॉट एवर हेल्थ इश्यूज इज देयर, दैट डज नॉट मैटर। ओके, फॉर एवरी फैकल्टी। यस, ओके श्वेता, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, अंडर ब्रैकेट राइट डाउन, एडजेसेंट टू इट, बाजू में लिखिएगा सेम सेक्शन डिफरेंट टाइम। सेम सेक्शन डिफरेंट टाइम। हिंदी में बता दूं बेटा विशाल? बेटा पता नहीं यार, आत्मा इंग्लिश हो गई लगता है अब तो मुझे। आप लोग इतना है ना, मुझे पहली बार नहीं, कुछ एक बार हो रहा है कि वो इंग्लिश होते होते। देखो विशाल, ऐसा है, मैं सेक्शन तो इंग्लिश में ही बोल पाऊंगा बेटा, है ना। एक पर्टिकुलर सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूं, वहां पर डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अलग अलग क्षण में मैंने चेक किया। पहले क्षण में थी वेलोसिटी, वेग था जो 5 मीटर पर सेकंड था। दूसरे क्षण में भी मैंने चेक किया 5 मीटर पर सेकंड ही था। तीसरे क्षण में भी मैंने चेक किया 5 मीटर पर सेकंड ही था। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? स्टडी फ्लो हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि पहले क्षण में 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में 6 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मतलब यहां पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही हैं, या फ्लो क्वांटिटीज, मतलब वेलोसिटी है, वेग है, त्वरण है, एक्सीलरेशन, ये बदल रहा है। एट द पर्टिकुलर सेक्शन यदि ये बदलते हुए डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग क्षण में मुझे बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं, सो ये आपका अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आती है, वो कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जितना द्रव्यमान एंटर किया है, अंदर आया है, उतना बाहर जाएगा, ये बोल रहा है। उसी का ही ये शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है बेटा? AV हो जाता है। और इसी AV को A मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, दैट इज योर व्हाट? क्षेत्रफल और वेग। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो जा रहा है? डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूब मतलब घन मीटर डिवाइडेड बाई समय। ठीक है, अब यहां पर फ्लो रेट और डिस्चार्ज, अभी सेम एरिया के लिए क्षेत्रफल सेम है, ओके, क्षेत्र सेम है। अभी 5 मीटर पर सेकंड के साथ कुछ अलग डिस्चार्ज आपको मिलेगा, 6 मीटर पर सेकंड के साथ अलग डिस्चार्ज मिलेगा, 4 मीटर पर सेकंड, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग क्षण में ये बात कर रहे हैं, तो अलग अलग आपको क्या मिल रहा है बेटा? डिस्चार्ज मिल रहा है। समझ में आई ये चीज? तो ये अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। यहीं पर मैंने अलग से फिर से ये बोला, हाँ बेटा, मैं born and brought up in Hindi area and I'm from the Hindi भाषी area only and हिंदी में लेख भी लिखा करता हूँ, बट ये इंजीनियरिंग जो है ना वो हिंदी में नहीं हो पाती मेरे से। और कई बार हिंदी पेपर देखता हूँ तो मैं शंट हो जाता है दिमाग, भाई ये विस्कोसिटी को श्यानता बोलते हैं। ठीक है चलिए, अब मैं एक डाइवर्जिंग पाइपलाइन ले रहा हूं बेटा, या कन्वर्जिंग, सॉरी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्र क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। पहला एरिया था A1, दूसरा है V1 बेटा।
यहां पर फर्स्ट इंस्टेंट पर क्या था, पहले क्षेत्र आप फर्स्ट पहला जो क्षेत्र में सेक्शन कंसिडरेशन में ले रहा हूं, वहां पर पहले इंस्टेंट पर वेलोसिटी थी पहले क्षण पर 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे पर भी 4 मीटर पर सेकंड, तीसरे पर भी 4 मीटर पर सेकंड ही थी। तो ये मैं क्या बोलूंगा बेटा, स्टेडी फ्लो है। दूसरे सेक्शन में मैंने देखा पहले दूसरे और तीसरे क्षण में सभी में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेक्शन पर देखा वेलोसिटी वेग पहले दूसरे तीसरे क्षण तीनों में देखा 6 मीटर पर सेकंड ही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फ्लो स्टडी तो हो गया, बट यहां पर एक ही इंस्टेंट पर देखूं, एक ही क्षण में देखूं अलग अलग सेक्शन पर, तो पहले सेक्शन पर 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे पर 5 मीटर पर सेकंड, तीसरे पर 6 मीटर पर सेकंड। तो एट द गिवन इंस्टेंट एट डिफरेंट सेक्शंस, दिए गए क्षण पर दिए गए समय पर अलग अलग क्षेत्र पर मैं देखता हूं, इस सेक्शंस पर देखता हूं तो वेलोसिटी बदल रही है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। यदि ये फ्लो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड ही है, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही है, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही है, एक ही इंस्टेंट पर डिफरेंट सेक्शन पर, दैट इज योर व्हाट, यूनिफॉर्म फ्लो। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। विशाल बेटा मेहनत करवा लिया आपने अच्छे से, ठीक है। इतनी ही हिंदी शायद आज से अब मैं बोल पाऊं, इससे ज्यादा मैं, क्योंकि हिंदी बोलते बोलते रुकना पड़ जाता है बेटा। जय हिंद, ठीक है। टाइम भी नहीं मिलता कि आपसे थोड़ा मुस्कुरा के बात कर लें, क्योंकि मुस्कुराए और वहां 2 क्वेश्चन कम हुए या कंसेप्ट पीछे हो गए, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। सो राइट डाउन अंडर स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। A flow is said to be a flow is said to be a steady flow. A flow is said to be a steady flow if the fluid properties अंडर ब्रैकेट लिखिएगा जरा, होगा बेटा अरशद, सब एग्जांपल दूंगा ना, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। ए फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, अंडर ब्रैकेट लिखिएगा प्रेशर, कॉमा डेंसिटी एंड टेम्परेचर। प्रेशर, कॉमा डेंसिटी, कॉमा टेम्परेचर। and flow quantities under bracket velocity and acceleration, under bracket write down velocity and acceleration do not vary with respect to time, do not vary with respect to time, at any given section, at any given section otherwise the flow is unsteady, otherwise the flow is unsteady, otherwise the flow is unsteady,
otherwise the flow is unsteady. Del V by del S, del V by del T is equal to 0 or del rho by del T is equal to 0 for steady flow. Okay, del means what? पार्शियल है, अलग अलग वेरिएबल्स है, एक ही वेरिएबल नहीं है. V भी है, रो भी है और बहुत कुछ भी है. ठीक है. फॉर स्टडी फ्लो राइट डाउन दिस. फॉर स्टडी फ्लो if it is not equal to 0 then means what? Unsteady flow. जितना आपको यहां से जो भी नोट करना है, वैसे मैं दूंगा एग्जांपल, बट कुछ रफ में रखना है तो रखिए यहां से विद इन ए मिनट. Write down next heading. Write down next heading. Second type of fluid flow categorized as uniform and non-uniform flow. Uniform and non-uniform flow. Uniform and non-uniform flow. Uniform and non-uniform flow. Write down under it. Uniform and non-uniform flow. Write down under it. Write down under it. A flow is said to be uniform. A flow is said to be uniform if the fluid properties and flow quantities A flow is said to be uniform if the fluid properties and flow quantities at any instant of time do not change with respect to space. Do not change with respect to space.
do not change with respect to space. Means del v by del s is equal to 0, del rho by del s is equal to 0. That is your what? Uniform flow. If it is non-uniform, that will be not is equal to. Non-uniform flow. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. जरा यहीं ऑब्जर्व करिए, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग हो जाए, डाइवर्जिंग में क्या होगा? डाइवर्जिंग में क्या होगा? A1 V1 A2 V2, एरिया बड़ा हो रहा है, वेलोसिटी कम होते जाएगी. दैट इज योर व्हाट? डाइवर्जिंग. हाँ है ना? दैट इज योर व्हाट? डाइवर्जिंग वन. दैट इज योर व्हाट? कन्वर्जिंग वन. But at different section, at the same instant, 6, 5, 4 or 4, 5, 6, that velocity is changing. That is your what? Non-uniform flow. That is, अभी example दूंगा, example in the sense मैं the following दूंगा आप लोगों को. That is your what? Non-uniform flow. अभी एक सेक्शन पर मैंने चेक किया 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे पर भी 5 मीटर, एट तीसरे पर भी 5 मीटर पर सेकेंड एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट. एक ही बार चेक किया 5, 5, 5. सो दैट विल बी योर व्हाट? दैट विल बी योर व्हाट? यूनिफॉर्म फ्लो. दैट विल बी योर व्हाट? यूनिफॉर्म फ्लो. समझ में आया कि नहीं है? और यहां पर डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर सेक्शन भी मैं चेक करता हूं. सो दैट विल बी योर व्हाट? स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो. डिस्चार्ज वेरी नहीं कर रहा है, सो दैट विल बी योर व्हाट? स्टडी फ्लो. ओके. Now, let me take one objective before going to the laminar flow. Let me take one objective question. Match the following. Match the following. Match the following. A, study uniform flow. In front of this one, flow of liquid through a tapering pipe at either increasing or decreasing rate. B in first column, unsteady uniform flow. Second in the column 2, flow of liquid through a tapering pipe at constant rate. C, a steady
non uniform flow. Third, in column 2, flow of liquid through a long pipe of constant diameter at increasing or decreasing rate. Fourth, D in first column, unsteady non uniform flow. Fourth, in second column, flow of liquid through a long pipe of constant dia at constant rate. लीजिए और पूरा पढ़ करके ऑब्जर्व करके आराम से बताइए. आराम से है ना, एक लिमिटेशन है हमारी, ठीक है. as soon as possible, that is our limit. ये सिद्धार्थ करेक्ट. Yes, Shivam, correct. Yes, Prince, correct. सूरज राव, पूरे तरीके से. व्योम राव, देखो यही आपकी अंडरस्टैंडिंग बता रहा है. इतना बताने के बाद भी गलत आंसर दे रहे हैं. यह संकेत और नोवल करेक्ट. आस्था करेक्ट. चलिए वन बाय वन ऑब्जर्व करते हैं. कोड इज व्हाट? 4321. A4B3C2 D1. 4321. That will be your answer. Steady and uniform flow. Steady and uniform flow. Flow of liquid through a long pipe of constant dia. मतलब constant dia यूनिफॉर्म तो हो गया. एट कांस्टेंट रेट मतलब डिस्चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा है.
सो कांस्टेंट रेट भी है और डायमीटर भी कांस्टेंट है, दैट इज योर व्हाट, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो. सो A4 नाउ अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो. फ्लो अनस्टडी मतलब डिस्चार्ज चेंज होने की बात हो रही है, बट पाइप का डायमीटर क्या है, कांस्टेंट है बेटा. समझ में आया क्या बोल रहा हूं? पाइप का डायमीटर क्या है, कांस्टेंट है. एट द पर्टिकुलर लोकेशन वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तभी जाकर के डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये बताया था मैंने केस में. दैट इज योर व्हाट, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो. डाया कांस्टेंट है. नाउ स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यही अर्शद का डाउट था आई थिंक. फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ टेपरिंग पाइप. डाया चेंज हो रहा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी वेरी होगी. टेपर है, इट मे बी कन्वर्जिंग, इट मे बी डाइवर्जिंग. ओके, बट रेट क्या है, फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है. अदरवाइज वो अनस्टडी भी हो जाता. नाउ अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू टेपरिंग पाइप. टेपर हो रहा है, कन्वर्ज होता है या डाइवर्ज हो रहा है, और साथ ही साथ डिस्चार्ज का रेट. भी चेंज हो रहा है. समझ में आया? डिस्चार्ज का रेट भी चेंज हो रहा है. दैट इज योर व्हाट, स्टडी एंड अनस्टडी एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, जो भी नोट करना है करिए. यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट फ्लो इज योर व्हाट, नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो इज व्हाट, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. Laminar and turbulent flow. Next type of flow is what? Laminar and turbulent flow. Laminar in the sense जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो लेयर्स में हो रहा है. जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है, लेयर्स में हो रहा है. जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है बेटा, लेयर्स में हो रहा है. और जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो लेयर के अंदर में ही हैं. जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो लेयर में ही हैं. Getting me or not? At low velocity that you will get the laminar flow. Low velocity that you will get the laminar flow. एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर रिलेटिवली स्लाइड हुआ, सेकंड के ऊपर में थर्ड, थर्ड के ऊपर में फोर्थ, फोर्थ के ऊपर में फिफ्थ, लाइक दिस. दैट इज योर व्हाट, लैमिनार फ्लो. यहां डायनेमिक विस्कोसिटी आपको एक्शन में देखने को मिलेगा. बट नाउ सेकंड वन इज योर व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो. दैट इज योर व्हाट बेटा, लैमिनार फ्लो. सेकंड वन इज योर व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो. अगेन यहां भी लेयर बाय लेयर मूवमेंट ही है. अगेन यहां पर भी लेयर बाय लेयर मूवमेंट ही है. लेयर बाय लेयर मूवमेंट हो रहा है बेटा, लेयर बाय लेयर मूवमेंट हो रहा है. बट जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो आपका फर्स्ट टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, व्हाटएवर जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एज ए लंप कुछ गुच्छा बना करके लेयर टू लेयर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं. फर्स्ट टू फिफ्थ, फिफ्थ टू फर्स्ट, लाइक दिस. फर्स्ट टू थर्ड, फोर्थ टू फर्स्ट. दैट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर. मतलब फ्लो आपका एक्स डायरेक्शन में हो रहा है. यहां पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर रोटेट होते हुए, रोल होते हुए एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. बट यहां पर पार्टिकल रोटेशन की जगह वाई डायरेक्शन में मूवमेंट भी दे रहे हैं. दैट इज व्हाट, एट हायर वेलोसिटी. एट हायर वेलोसिटी और हायर
रेनॉल्ड नंबर, हायर रेनॉल्ड नंबर पर आपको क्या मिलेगा, हायर रेनॉल्ड्स नंबर पर आपको क्या मिलेगा बेटा, दैट इज योर व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो. At higher Reynolds number, that what will get turbulent flow. That is your what lower velocities. That is your what at lower velocity. हाँ, Reynolds number ये क्या है, रो VD divided by mu है. That is your what रो VD divided by mu है. Okay. Density बढ़ जाने और कम हो जाने से भी आपका रेनॉल्ड नंबर वेरी करता है. ठीक है, तो इस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे कि बट वेलोसिटी रो वीडी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ रहा है, या वेलोसिटी कम हो रही रेनॉल्ड नंबर कम हो रहा है. सो दैट विल बी योर व्हाट, यहां पर लोअर वेलोसिटी पर लेयर्स ब्रेक नहीं होगी, यहां पर हायर वेलोसिटी पर मॉलिक्यूल्स लेयर ब्रेक करके मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर एक्स डायरेक्शन में भी स्टार्ट कर लेंगे. फॉर लेमिनार फ्लो दैट यू विल गेट parabolic profile, that we'll see, parabolic velocity profile that you will get, parabolic. For turbulent flow that you will get logarithmic profile, velocity profile, that we'll see after some time. Okay, let you take this, then I'll give you the few lines. Take this diagram as soon as possible, then I'll give you the few lines. Layers fluid particles move in the form of write down in laminar flow fluid particles move in the form of layers
with one sliding over the other. Laminar flow generally occurs at laminar flow generally occurs at low velocity. Laminar flow generally occurs at low velocity. Next line, when the fluid particles moves in highly disorganized manner, when the fluid particles moves in highly disorganized manner, leading to rapid mixing, generally occurs at higher velocity. Generally occurs at higher velocity. Generally occurs at higher velocity. Next is your what? Rotational and irrotational flow. Next is your what? Rotational and irrotational flow. Rotational, fourth category, rotational and irrotational flow. सिंपल एक स्ट्रीम लाइन जिसके अलोंग फ्लो होता है उसको मैं कंसिडर करता हूं बेटा. Okay, and if it will be like this, स्माइली की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, स्माइली की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, like this only. मतलब फ्लूइड पार्टिकल अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं हो रहे, सो इररोटेशनल फ्लो. That is your what? Irrotational flow. और यदि मैं यहां पर बोलता हूं कि जो आपके फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो मास सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, मास सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, that is what called as rotational flow. That is somehow related to the ideal flow, and that is somehow related to viscous and turbulent flow. Viscous and turbulent flow. Okay, take this diagram and I will give you the few lines.
their mass center, rotate about their mass center, rotational flow when fluid particle write down few lines. A flow is said to be rotational flow when fluid particle rotate about their mass center during motion, otherwise the flow is said to be irrotational generally associated with non-viscous flow, or ideal flow. Next categorization of fluid flow is one-dimensional, two-dimensional, and three-dimensional flow. ध्यान से सुनिएगा, आसान सा काम है. One dimensional flow. A velocity vector is a function of one direction and time. One dimensional unsteady flow. One dimensional steady flow, velocity vector is a function of x direction only. Similarly, 2D unsteady flow, velocity vector is a function of x, y and t. 2D steady flow, velocity vector is a function of x and y only, not time. Similarly, 3D flow, 3D unsteady flow, 3D unsteady flow, velocity vector is a function of x, y, z and time. 3D steady flow, velocity vector is a function of three direction only, not time.
let you note down this.